صدیوں سے دنیا کے لوگ یہ سوچتے آئے ہیں کہ کچھ فرشتے آسمان پر سے زمین پر آئے ہیں اور انسان کی بیٹیوں سے جسمانی تعلق بنائے، اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ سب دیو زادہ تھے، پر ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا تھے پر ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا نہیں تھے، وہ لوگ فرشتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بہت ڈر تھا اور ان فرشتوں نے لوگوں سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دیا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، پر اگر آپ دھیان سے ان باتوں پر غور کریں تو وہ گرے ہوئے آسمانی فرشتے تھے، اور ان کے بچوں کی تصویریں آپ کو آج بھی کچھ ملکوں میں کچھ لوگوں کے گھروں میں ملیں گی۔ جو موویز آج لوگ دیکھتے ہیں، ہیڈیز، اتھینیا، اپولو، پرسیس معبودوں کے بارے میں، یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کوئی کہانی بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہی گرے ہوئے فرشتے ہیں، اور شیطان ایسے طریقوں سے ان کی پیشکش لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ آج لوگ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ بچے ان کو سراہتے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ آج لوگ ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے میکائیل فرشتہ کو حکم دیا اور اس نے ان فرشتوں کو زمین کے نیچے جہنم کے ٹاٹرس ککش میں قید کر دیا۔ اس کے بارے میں بائبل دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے۔ ان فرشتوں کو تو خدا نے جہنم میں قید کر دیا، پر جو گنہگار انسان تھے ان سب کو طوفان نوح میں ختم کر دیا۔ صرف نوح اور اس کا خاندان اس طوفان میں بچائے گئے، جس کے بارے میں دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو، ماں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا۔ اس طوفان میں ساری انسانی اقوام فنا ہو گئی سوائے نوح اور اس کے خاندان کے۔ پر اگر سورما اس طوفان میں ہلاک ہو گئے تو پھر جاتی جولیت کہاں سے آیا؟ اس طوفان پر فنا ہونے کے باوجود دانو کہاں سے آئے؟ کیونکہ اس وقت صرف زمین پر نوح اور اس کا خاندان زندہ تھا۔ یہودی ربی یہ بتاتے ہیں کہ نوح کے وقت میں طوفان میں مرنے کے بعد 200 آسمانی فرشتے پھر ہرمون کے پہاڑ پر اترے اور انہوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے، اور پھر سورما پیدا ہوئے، اور بہت بڑی گنتی میں سورما زمین پر رہتے تھے۔ داؤد کے وقت 5 پہلوان یعنی کہ 5 سورما یا دیوزادے اس وقت زمین پر تھے۔ نمبر 1 پہلا ہے جاتی جولیت۔ پہلا سیموئیل 7 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا، اور فلسطینیوں سے پھر جنگ ہوئی۔ تب یور کے بیٹے الحنان نے جاتی جولیت کے بھائی لہمی کو، جس کے بھالے کی چھڑ جولاہے کے شہتیر کے برابر تھی، مار ڈالا۔ تیسرا ہے ایشبی نبوب جو دوسرا سیموئیل 21 باب اور اس کی 16-17 آیت میں ہے۔ اور ایشبی شبوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا، جس کا نیزہ وزن میں پیتل کے 300 مسکال تھا اور ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے، پر زرایا کے بیٹے امیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطینی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔ چوتھا ہے صف۔ دوسرا سیموئیل 21 باب اور اس کی 18 آیت میں فلسطینیوں کی پھر جوب میں لڑائی ہوئی، تب ہوشاکی سکی نے صف کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا۔ 5ویں دیوزادے کا نام تو بائبل میں نہیں بتایا گیا، پر اس کے بارے میں دوسرا سیموئیل 21 باب اور اس کی 20۔ پھر جات میں لڑائی ہوئی، اور وہاں ایک بڑا قدور شخص تھا، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کی سب گنتی میں 24 تھیں، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمی کے بیٹے یونیتن نے اسے قتل کیا۔ بری روحیں نوح کے دور میں طوفان کے بعد آئیں۔ پیدائش باب 6 سے پہلے کسی بھی بری روح کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، پر دیوزادوں کی موت کے بعد بری روحوں کا ذکر ملنا شروع ہوا۔ بری روحیں وہ ہیں جو دیوزادوں کے مرنے کے بعد ان میں سے نکلی تھی۔ اب داؤد آتا ہے اور گولیت کو پتھر سے مار گراتا ہے، اور وہ اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ دیوزادے شیطان کی پشت تھے، اور داؤد نے اس شیطان کی پشت کو ختم کیا۔ داؤد نے شیطان کے جسمانی نسل کو ختم کیا۔ پہلا تواریخ 20 باب اور اس کی 4 سے 7 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، داؤد اور اس کے لوگ دیوزادوں سے لڑتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ شیطان اپنی پشت کے ختم ہونے پر
गुस्से में आता है। और पहला तवारीख 21 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, और शैतान इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल की शुमार करे। 7 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ, इसलिए उसने इसराइल को मार डाला। यूहन्ना 7 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा है, क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से था। अब दाऊद ने तो शैतान की नस्ल को यानी देवजादों को जिस्मानी रूप से ख़त्म किया, और यीशु मसीह ने शैतान की रूहानी नस्ल को ख़त्म किया। जो बुरी रूहें थी उन देवजादों से निकली थी। यीशु मसीह के इस ज़मीन पर आने पर, क्रूस पर चढ़ाए जाने पर और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने, शैतान और उसके फरिश्ते बुरी तरह से हराए गए और शर्मिंदा किए गए। और आज कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और उसकी बातों पर अमल करता है तो शैतान उनको छू भी नहीं पाता। लूका 10 और उसकी 19 आयत में यीशु ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। मरकज़ 16 और उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ हरगिज़ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हर जिंदा चीज़ जो इंसान के रूप में है वो रूह, जान और बदन की बनी है, चाहे वो देवज़ादा हो, इसराइली लोग हों या कनानी हों, आप हों या मैं हूँ। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे बेऐब महफूज रहें। बाइबल बताती है कि देवज़ादे ज़मीन पर रहते थे। वो बहुत खाते थे, पीते थे, बहुत सोते थे, बोलते थे और लड़ते थे। उनकी जान थी, उनका जिस्म था। अगर उनका जिस्म था तो ही दाऊद ने गोलियत के नाम के देवज़ादे का सर काट दिया। देवज़ादे के अंदर रूह थी जो कभी नहीं मरती। उनका जिस्म था और जान और रूह थी। रूह क्या है? आपकी रूह 3 चीज़ों से बनी है, आपका मन, आपकी मर्जी और आपके जज्बात। और शैतान इन तीनों चीज़ों पर ही हमला करता है। आज लड़ाई किस चीज़ के लिए है? आपकी रूह, आपकी जान के लिए। शैतान आपकी रूह के पीछे है, वो आपके जज्बों के साथ खेलता है, आपके फैसलों को ख़राब करने की कोशिश करता है, और खुदावंद आपकी रूह को बचाना चाहता है। लड़ाई आपके जिस्म की नहीं है, क्योंकि जिस्म तो कुछ ही लम्हों में बपतिस्मा लेने से बच जाती है, पर रूह को वक्त लगता है। ये बहुत ही गहरा कलाम है। तो अगर देवज़ादों का जिस्म है, उनके अंदर रूह है, जान है, तो क्या वो अंत के दिनों में मुर्दों में से जलाए जाएंगे? क्योंकि यूहन्ना बाब 5 और उसकी 28 और 29 आयत में लिखा है, इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। तो क्या देवज़ादे भी जलाए जाएंगे? नहीं। बाइबल की गहरी तालीम बताती है कि देवज़ादों को जलाया नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि जब एक देवज़ादा मरता है, मरने के बाद उनकी रूह तो जहन्नम में जानी चाहिए, पर नहीं। जहन्नम में वो इस वजह से नहीं जाती क्योंकि वो इस ज़मीन पर पैदा होती है। जिस तरह कुछ रूहें आसमान पर रहती हैं, उसी तरह इनकी रूहें इस ज़मीन पर रहती हैं, और ये बुरी रूहें इंसानों को सताती हैं, इन पर हमला करती हैं, लड़ाई झगड़े करवाती हैं, ज़मीन पर मुसीबत पैदा करती है। ये इंसानों को तंग करती हैं, क्योंकि ये इंसानों के मेल से ही, इंसानों से ही बनी है। और देवज़ादों की मौत के बाद उनके जिस्म तो ख़त्म हो जाएंगे, पर उनकी रूहें जिस्म से निकलकर ज़मीन पर बबाल खड़ा करेंगी। इनका इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक रोज़े अदालत का दिन नहीं आता। मत्ती 8 और उसकी 28 आयत में लिखा है, जब वो उस पार गदरेनियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले, और वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक़्त से पहले हमें अजाब में डाले? बाइबल साफ साफ बताती है कि एक वक्त है जब इन बुरी रूहों का इंसाफ किया जाएगा। तब तक इन्हें छूट है तबाही करने की, पर वो तबाही वहीं कर सकती है जहाँ पर खुदावंद की हजूरी ना हो। जिस इलाके में यस्सु को वो बदरूहों से जकड़े हुए लोग मिले थे,
उस इलाके में लोग खुदा के हुक्मों को नहीं मानते थे। इस शहर के लोग खुदा के खिलाफ चलते थे, पर यस्सु उस शहर में गए और उस इंसान को उस बदरू से आज़ाद किया। क्या आप जानते हैं कि कितनी बुरी रूहें उस इंसान के अंदर थी? 6,000 बदरूहें उस इंसान के अंदर थी। ज़रा सोचिए कि 6,000 बुरी रूहों ने उसका क्या हाल किया होगा। जब लोग उसे बेड़ियों से बांधते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था। रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। पर यीशु मसीह को मिलने के बाद वो 6,000 बुरी रूहें उसी वक्त उसे छोड़कर चली जाती हैं और वो इंसान पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है और उस दिन से नया जीवन उसे मिलता है। आप जानते हैं कि बदरूहों के अपने अपने इलाके होते हैं, अपने अपने शहरों में इन्हें रहना अच्छा लगता है। कुछ घर इन्हें अच्छे लगते हैं और वो उन इलाकों और उन घरों को छोड़कर नहीं जाती जब तक खुदावंद की आग और खुदावंद के मसा से उनको निकाला ना जाए। आज अगर कुछ इलाकों में, शहरों में, महल्लों में, कुछ मुल्कों में आप जाएंगे तो वहाँ कदम रखते ही एक अलग सा एहसास मालूम होता है। जिस इलाके में लोग मूर्ति पूजा ज़्यादा करते हैं, खुदावंद के कलाम को तोड़ते हैं, वहाँ बदरूहें ज़्यादा काम करती हैं। ऐसी बहुत सी गहरी बातें हैं जो बदरूहों के बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, पर फिक्र ना करें क्योंकि खुदावंद के आसमानी फरिश्तों के भी इलाके होते हैं, शहर होते हैं, मुल्क होते हैं जो उसी हद में रहकर खुदा के लोगों की हिफाजत करते हैं और इनकी खिदमत करते हैं। तो क्या हमें इन अंधेरे की ताकतों, इन बुरी रूहों से डरने की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। अगर आपका खुदावंद जिंदा है, अगर आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हमें शैतान और उसकी सारी कुदरत पर अख्तियार दिया है। खुदा ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है कि वो यीशु के नाम में इन बदरूहों को लोगों से निकालें, लोगों को चंगा करें और खुदावंद की बरकत को लोगों की ज़िंदगियों में लेकर आएँ। आज तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद का कलाम नहीं होता। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि माँ बाप के जीवन में खुदावंद का कलाम नहीं होता, क्योंकि उनकी परवरिश में खुदावंद का कलाम नहीं होता और बुरी रूहें उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में काम करती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।